तू ना बहुत इमोशनल है या तू बहुत सेंसिटिव है, तू सोचती बहुत है, कॉर्पोरेट में काम करती है, थोड़ा डिटैचमेंट सीख। ये ऐसी अनसॉलिसिटेड ओपिनियंस और एडवाइस मुझे मिलती रहती है रोज़, हर दिन। दो आई एम एक्सेलिंग इन माई वर्क, बट स्टिल ये एडवाइस मुझे हर रोज़ मिलती है क्योंकि इट शोज़ ऑन माई फेस लाइक आई एम वरीड, आई एम स्ट्रेस्ड एंड ऑल। एंड ऑब्वियसली हु वांट्स टू डील विद इमोशंस? तो लोगों को तो चेंज नहीं कर सकते थे ना, करना तो खुद को ही चेंज है। और एक्चुअली हर दिन इतना इमोशनल लोड लेना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो आई टुक मैटर्स इन माई ओन हैंड्स एंड did something. Hi guys, I'm Sakshi, aka FinCorp Girly, and as you guys know, or if you don't know, I've been working in corporate for last 6 years. I am a Gen Z, but I am very much rooted from the traditional beliefs of how world works, but yet want to challenge them with my mindset or my thought process, what I've learned so far through my community, through people around me, or my Indian culture or tradition. तो मेरे दिमाग में ना बहुत कुछ चलता रहता है, मेरी बातों से आपको समझ में आ गया होगा। But I just don't want to live with my thoughts all the time. Like, I want to live life as well. And everyone around me knows I'm an AI junkie. Like, my family and my friends and my co-workers, they call me out so much. Like, every time we see you, either you're talking to Claude or Gemini or ChatGPT, like they're like your second personality. So अब लोगों ने कॉल आउट किया है, उसका बुरा मानूं या फिर उस चीज़ को अपने लिए यूज़ करूं. So I made myself a Gita healing program because I'm a huge follower of the concept of energy, like how universe is always looking out for us, how we all are part of a very bigger plan. So I gave certain prompts to my AI to build me a 100-day journey where I can heal, grow, and be a better version, which is not a stone from heart or emotionless, but a way more mature person who's more of an observer and does not get affected with what goes around herself. So I have brought this program for you where I will be sharing a video every week documenting my 7-day learning of that week, and this will go until 100 days. So let's getting started without making any further delay. So this first 7 days were dedicated for the sthir phase, which means a more of a dimension where if anything is happening around you, you're not that sensitive to it, you are not a stimuli to that whole thing, and you just take a step back and observe and understand what is happening around you is not you, in nutshell. So every day my agent or like my AI prompt, whenever I go to it, I tell them, okay, this is day 1, this is day 2, this is day 3. They give me every day a practice to follow, and I have documented it for you, so you don't have to do all the hard work. And if any of the problem that I was facing, which was overthinking or being too emotional or being sensitive at times or taking things too much to your heart, or even if you just want to be a part of a journey where you can be a better version of yourself, and you just have this whole thought or belief that whatever has been written in our scriptures is there for a reason, just to know the opinion of just know the opinion
from not just from a blind faith, but actually understand it from what it is in actual nature. So the day one was around Urja Visarjan, which is also called as detached compassion. So I have this habit कि जब भी मैं कोई रील भी देखती हूँ और उसमें कुछ बहुत ही इमोशनल हो रहा है, या कुछ भी मम्मी रील आ गई, डॉग्स की रील आ गई, या किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई बहुत परेशानी में है, मैं कनेक्ट कर जाती हूँ उससे विद इन अ सेकेंड, एंड आई स्पेंड ऑलमोस्ट गुड 20-15 minutes to process that emotion, and my 30 minutes are gone just because I saw that reel. And अगर या तो मैं वो रील ना देखूँ, या जो चीज़ें मेरे पास आसपास हो रही हैं मैं एक कमरे में बंद हो जाऊँ, मुझे कुछ ना दिखे, या मेरे पास ऑप्शन है कि मेरे आसपास वो सब चीज़ें हो भी रही हों, तो मैं उतना ज़्यादा डीपली उन्हें फील ना करूँ कि वो मेरी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने लगे. तो ये मेरी प्रॉब्लम थी जो मैंने उसके साथ शेयर की, एंड दिस इज़ द एक्टिविटी और द रिचुअल दैट आई वॉज गिवन टू फॉलो. So first ritual was to take a deep breath, take a step back within your mind and say, I understand this feeling, I understand this energy that is going on with this person or in this situation or in this time zone, but I don't absorb it, I release it. So any time you feel कि यार बहुत ज़्यादा heavy feel हो रहा है, किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा डिस्कस्टेड फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी फील हो रही है बट तुम्हें वो मिल नहीं रही है, जेलसी फील हो रही है, या कोई भी एक्सट्रीम्स में तुम इमोशन फील कर रहे हो, जस्ट टेक अ स्टेप बैक, से आई अंडरस्टैंड दिस एनर्जी बट आई डोंट अब्जॉर्ब इट, आई जस्ट रिलीज इट, लेट इट गो, एंड यू विल फील द लाइटनेस. यू विल फील कि उस चीज़ को देखते हुए समझते हुए भी तुम अंदर से अपनी गट में कुछ अजीब सा नहीं फील कर रहे हो. तब तुम्हें समझ में आने लगेगा कि हाँ, दिस थिंग इज़ एक्चुअली वर्किंग. एंड प्लीज़ कमेंट्स में जाके मुझे बताना इफ़ यू रेजोनेट विद दिस, इफ़ दिस थिंग इज़ हेल्पिंग यू और नॉट. द वे इट इज़ डिडंट हेल्प विद, आई थिंक इट्स हेल्पिंग मी. मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्टेप which is called a 5-second pause. So मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो था वो ये था कि I moved to a new role, though I've been working from last 6 years, but it can happen to anyone. 6 years, 10 years, 20 years, whenever you start something new, not even in corporate, like any person, you're moving to a new marriage, you are moving to a new college, you are going to a new hostel, you're going to a new city, कहीं भी कुछ चेंज हो रहा है, कुछ नया हो रहा है, या कुछ भी अलग हो रहा है जिसकी तुम यूज टू नहीं हो, इट्स वेरी ईजी टू बी ओवरवेल्म्ड अबाउट इट. इट्स वेरी ईजी टू बी taken aback about that whole situation, and obviously it affects a lot of people to its core, and I'm one of them, and I really struggled with that feeling anytime I used to start something new. That is why I procrastinate a lot. Like लोग बोल देते हैं यार तुम बहुत आलसी हो, तुम कुछ नया नहीं करना, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना, बट कोई ये नहीं समझता कि किसी को मज़ा नहीं आता है पीछे रहने में, किसी को मज़ा नहीं आता है सिर्फ स्टैगनेंट रहने में. बहुत से लोग हैं जिनको आगे बढ़ना है लाइफ में, बट सिर्फ इस फीलिंग की वजह से वो चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. तो कमिंग बैक टू द एडवाइस विच सेज 5-second पॉज. तो जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा होता है, जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो या बहुत ओवरवेल्म फील करते हो, तो अपने दिमाग को एक प्रॉम्प्ट दो कि यार ये एक फेज़ है मेरी लाइफ का, ये मेरी पूरी लाइफ नहीं है. जैसे एक मूवी का सीन है, मुझे पता है कि मूवी के एंड में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं भी हुआ तो ये मूवी ख़त्म होने वाली है, तो मैं क्यों उस पर्टिकुलर सीन को अपनी पूरी डेस्टिनी बना लूँ. उसी तरह से जब भी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी हो रहा हो जहाँ बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे हो, जहाँ कोई आपको नीचा दिखा रहा हो, कोई आपको गलत फील करा रहा हो, तो आप ये करो, आप एक स्टेप पीछे लो, 5 सेकंड का पॉज लो और कहो ये एक सीन है, ये एक फेज़ है, ये मेरी पूरी लाइफ नहीं है. मुझे ये जो चीज़ मेरे साथ हुई है ये मेरी पूरी लाइफ को डिफ़ाइन नहीं करेगी. ठीक है. एंड थर्ड थिंग, द थर्ड एडवाइस इज़ it's a very strong practice that you can follow if you're very sensitive from core. Like a lot of people are sensitive from nature, like you can't do anything about it, like they are born with it. Like कुछ लोग बहुत ही शैतान चालाक टाइप के होते हैं, like उनको कितना भी अच्छाई सिखा दो वो गलत करेंगे ही. उसी तरह से कुछ लोग होते हैं उनके साथ कितना भी गलत कर दो बेचारे अच्छाई छोड़ते ही नहीं हैं. तो ये
उन लोगों के लिए जो कॉन्स्टेंटली एक एनर्जी रोलर कोस्टर पे रहते हैं. दिस इज़ कॉल्ड अ 2 minute void. All you need to do is स्ट्रेट योर स्पाइन, मतलब अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा कर लो. अपने जो पाम्स हैं उनको अपने पैरों के ऊपर ऐसे इस तरह से रखो, आलती पालती करके बैठो. लाइक क्रॉस योर लेग्स इफ यू डोंट नो आलती पालती. सो क्रॉस योर लेग्स एंड कीप योर हैंड्स अपवर्ड एंड जस्ट क्लोज योर आइज एंड इमेजिन कि ये जो तुम्हारा क्राउन चक्र है, यहाँ पे एक बहुत ही तेज स्पीड से एक वाइट लाइट आ रही है. करो मेरे साथ इमेजिन. टेक अ डीप ब्रेथ and feel a strong white light come to your crown chakra. And as it come, it is pushing, like there's a push in your in your center of your body, and there's another light that is coming from your back and going directly to the ground. What I do is I imagine it as a brown or a black light. So मैं इमेजिन करती हूँ यूनिवर्स से एक स्ट्रॉन्ग वाइट लाइट मेरे सर में आ रही है, और मेरे अंदर जितना भी ग्रज, जितना भी गुस्सा, जितना भी सैडनेस, जितनी भी गलत चीज़ें हैं जो मेरी बॉडी होल्ड कर रही है, वो सब उस चीज़ को अब्जॉर्ब करते हुए नीचे की तरफ ज़मीन में पुश कर रही है. हम सब ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हम एंड में सब ज़मीन में ही जाने वाले हैं. तो उस एनर्जी को अभी ही हम रिलीज़ कर देते हैं अपनी बॉडी से, क्योंकि ज़मीन सब कुछ समा लेती है अपने अंदर. तो इस प्रैक्टिस को आप करके देखो एंड यू विल फील अ मच लाइटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. सो दिस वॉज माई Day 1 लर्निंग ऑफ द ऊर्जा विसर्जन. नाउ कमिंग टू Day 2 विच इज़ द फाउंडेशन. तो जब भी आपकी लाइफ में ऐसे कोई इवेंट्स होते हैं, कोई भी बहुत ही ओवरवेलमिंगली अच्छा इवेंट जहाँ आपका बहुत मतलब मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी फ़ायदा हो गया हो या बहुत नुकसान हो गया हो, तो कई लोग ग्रीड में, प्राइड में आ जाते हैं. कई लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और डीमोटिवेटेड और डिप्रेस हो जाते हैं. कोई भी एक्सट्रीम अच्छा नहीं है हमारे लिए. तो गीता ये कहती है कि वो जो भी हमारे लाइफ में इवेंट्स हो रहे हैं ना, वो सीजन्स की तरह है, मौसम की तरह है. वो आएंगे, वो जाएंगे. कोई भी मौसम ज़्यादा दिन तक नहीं रुकता. ये यूनिवर्सल लॉज हैं, ये रूल्स हैं नेचर के. और हम कितना भी समझ लें या कितना भी सोच लें हम इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर हैं, हम सब चीज़ें, हम ह्यूमन सारा नेचर कंट्रोल करते हैं, नहीं. ये सबको 100 साल की लाइफ मिली हुई है, उससे ज़्यादा जीते भी होंगे तो बहुत ही कम लोग हैं, और ज़्यादातर कम ही जीते हैं. तो वो सब इतने में ही सब झेल के जाते हैं. उनको लगता है बहुत बिलियनर्स को कि हम पूरी दुनिया को चला रहे हैं, कहीं भी बारिश करा देंगे, कहीं भी डेटा सेंटर खोल देंगे, वगैरह वगैरह. बट हम सब एक ही नेचुरल लॉ में चल रहे हैं. तो जब हम अपने आप को नेचर से कनेक्ट करना शुरू कर देंगे, लाइफ समझना थोड़ा और ईजी हो जाएगा. दैट्स व्हाट आई थिंक. और मेरा एक पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट ये भी था कि मुझे इमोशनलेस नहीं बनना, क्योंकि कुछ लोग मुझे बोलते हैं ऑफिस में कि तुम इमोशनलेस बन जाओ. भाई मुझे नहीं बनना पत्थर तुम्हारी तरह. मैं सिर्फ लोगों को खुश करने नहीं जी रही हूँ, मैं यहाँ काम करने, तुम लोगों को खुश करने नहीं आई हूँ. मैं एट द एंड मुझे खुश होना है अपनी लाइफ में. तो जस्ट बिकॉज मुझे पंगे नहीं लेने या मुझे चुपचाप काम करके घर जाना है, तो मैं बिल्कुल ही डेड हो जाऊँ फ्रॉम इनसाइड. कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, मैं रिएक्ट ना करूँ. मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं पत्थर ना बनूँ, मैं कंट्रोल करना सीखूँ. तो ये उन लोगों के लिए जिनको एडवाइस मिलती है कि भाई इमोशनलेस बन जाओ, और जो ऐसी जॉब्स में भी हैं कि जहाँ उन्हें बनना पड़ता है, तो ये वो लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि ऐसी जॉब्स में होते हुए भी कैसे वो पत्थर ना बने. क्योंकि एट द एंड उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स ही उनके एट द एंड ऑफ द लाइफ विल गो विद देम, इट विल गो टिल देयर ग्रेव्स. तो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आप ना पत्थर नहीं हो, आप एक विंडो हो. जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें होती है वो एक हवा की तरह है. वो आपसे टकरा के वापस या बिखर नहीं जाती, आपके थ्रू होते हुए जाती है, जैसे आप एक विंडो हो. तो ये एनर्जी टास्क होता था मेरे लिए कि 10 सेकेंड पॉज लो, मेंटल शिफ्ट करो,
और ऑब्जर्व करो और कोई भी एनर्जी को डाउनलोड मत करो। ऐसा फील करो कि तुम एक विंडो हो और तुम्हारे थ्रू वो इमोशन चला गया, तुमने अंदर अपने सामान ही लिया, अपने साथ टकरा नहीं दिया। ठीक है, मूविंग ऑन टू डे 2 विच इज़ चेतना प्रोटेक्शन। As I mentioned 100 times I think throughout this video, I'm an extremely emotional person and sometimes what happens is किसी ने मुझसे कुछ भी उल्टा बोल दिया या किसी ने कुछ टॉन्ट मार दिया तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ से अफेक्ट हो जाती थी। तो गीता में एक श्लोक है जो कि ये समझाता है कि हमें एक टॉर्टोइस की तरह बनना चाहिए। एक टॉर्टोइस कैसा होता है, उसका एक शेल होता है, जब भी उसको कोई खतरा दिखता है, कोई डेंजर दिखता है, वो अपने सारे हाथ पैर, अपनी गर्दन उसके अंदर सिकोड़ लेता है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। हम ह्यूमंस का क्या नेचर है, कहीं कुछ हो रहा हम ज़बरदस्ती उसमें घुसने जाएंगे, कहीं लड़ाई हो रहा है हम देखने जाएंगे क्या हो रहा है, कोई पिट रहा है हम जाएंगे, कुछ गलत हो रहा है, हमारी क्यूरियोसिटी जो है ना कभी कभी हमें फंसवा देती है चीज़ों में। तो जब भी आपको ऐसे कुछ नेगेटिव एनर्जी या कुछ डिस्टर्बिंग कुछ ऐसा फील होता है तो आप इमेजिन करो कि आप एक टॉर्टोइस हो और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना वो एक आपका शेल है। और आपको क्या करना है, आपको ऐसे सोचना है कि आपने अपनी सारी एनर्जी अपने अंदर समेट के अपने शेल के अंदर डाल दी है। तब आप जब भी आप ये ऐसा करोगे ना प्रैक्टिस, आपको फील होगा कि हाँ एक आपने फिज़िकल बैरियर मन में बना लिया है, जो कि मन की बहुत ज़्यादा पावर होती है अगर उसको सही से यूज़ किया जाए। तो आई थिंक इफ़ someone who tends to feel that way can follow this practice. Gita day 3, I learned rising above duality. मतलब हमारी लाइफ जो है ना बहुत ही इजी टर्म्स में लोगों ने डुअलिटी के बीच में रख दिया है, सुख दुख, बैलेंस, नो स्ट्रेस, स्ट्रेस। तो गीता हमें ये कहती है कि हमें ना डुअलिटी में नहीं रहना है, हमें बीच में रहना है। कि कभी भी अच्छा हो रहा है, एक्सट्रीम हो रहा है तो उसी को अपनी रियलिटी नहीं मान लेना है, या जो बहुत ही बुरा हो रहा है उसको अपनी रियलिटी नहीं मान लेना है। रिच लाइफ वो होती है जो बैलेंस्ड हो, कि हर सिचुएशन, हर डुअलिटी में, हर एक्सट्रीम में हमारा कोर जो है वो स्टैंडर्ड रहे। तो दैट वाज द डे 3 लर्निंग फॉर मी। डे 4 and 5 were related to Sakshi Bhav, which explains कि जैसे एक समुंदर होता है जो बहुत ही शांत होता है नेचर से, लाइक सरफेस पे कुछ भी हो, सरफेस पे कोई भी फिशेस जा रही हो, बोट्स जा रही हो, पर अंदर डीप डाउन इट्स ऑल स्टिल, लाइक आपको कोई वेव्स या कुछ भी नहीं दिखेगा, इट्स स्टिलनेस। तो इंसानों को भी ऐसा ही बनना चाहिए कि सरफेस पे कुछ भी होता रहे, अंदर डीप कोर में यू शुड बी लाइक अ ओशन जो अंदर से बिल्कुल स्थिर है, कि आपके कोर को कोई ना हिला पाए। तो जब भी आपकी लाइफ में एक्सट्रीम्स में ऐसा कुछ भी होता है तो आप ये भी इमेजिन कर सकते हो कि आप एक ओशन हो, आपके जो भी हो रहा है सरफेस पे हो रहा है, कोर से आप बिल्कुल नॉर्मल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ नहीं होने वाला, आप बिल्कुल सॉलिड हो। And day 7, which was about face value. जब भी चीज़ें बहुत ही हैवी फील होती हैं, जैसे हावी होने लगती है हमारे ह्यूमन नेचर पे, और हमारा नेचुरल कॉन्शियसनेस जो है वो थोड़ा दबने लगता है, तो आपको ये सोचना है कि आप एक हायर कॉन्शियसनेस हो, आप एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर हो उस पूरी सिचुएशन में, और जो भी आपके सामने ये चल रहा है जो गलत है वो एक ड्रामा है, वो रियलिटी नहीं है, वो एक ड्रामा चल रहा है। तो आपको अपने आप को रिमाइंड करना है कि ये मैं इन छोटी बातों में नहीं उलझती हूँ, मैं सिर्फ ऑब्ज़र्व करती हूँ, मैं अपने ह्यूमन नेचर से बहुत पावरफुल हूँ, कि जो मेरा हायर कॉन्शियसनेस है वो इन सब चीज़ों से परे है। मेरा जो भी काम है, जो भी प्रोफेशन है, जो भी करियर है, वो इन चीज़ों से अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि मैं एज अ कोर बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। और लास्ट में जो प्रैक्टिस मुझे बताई गई डे 7 पे वॉज दी ड्रोन प्रैक्टिस। लाइक इमेजिन
आप और आपका कोई कलीग है जो कॉन्वर्जेसन कर रहा है, एंड उस कॉन्वर्जेसन में वो आपको कुछ ऐसा फील करा रहा है जिससे कि आपको बहुत छोटा फील हो रहा है, बहुत दुखी फील हो रहा है, आपका मैनेजर या बॉस या आपकी फैमिली में कोई है, या इवन आजकल जो रोड रेज इतना होने लगा है कि कोई भी किसी को मार देता है छोटी छोटी बातों पे, मतलब ऐसी कोई भी सिचुएशन जहाँ सामने वाला आपको दुख पहुँचा रहा है या किसी तरह का भी नेगेटिव इमोशन फील करने पे मजबूर करा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है कि वो दो लोग एक बिल्डिंग में हैं और आप बिल्डिंग के 10th फ्लोर पे हो। तो जब आप 10th फ्लोर पे हो, आपको नीचे क्या दिखेगा, दो काले सर, कुछ नहीं दिखेगा, और आपको वहाँ से दिखेगा ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है नीचे, कुछ कुछ है ही नहीं। तब आपको समझ में आएगा कि इन नेचर वो चीज़ कितनी नॉन एग्जिस्टेंट है जब आप ऊपर से चीज़ें देखोगे। तो ये प्रैक्टिस आप फॉलो कर सकते हो, और बाकी की जितनी भी प्रैक्टिसेस मैंने आपको मेंशन किया आप फॉलो कर सकते हो। और आप मुझे बताओ कि आपको ये सीरीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है, मेरा डॉक्यूमेंट करना कुछ फ़ायदे का है भी या नहीं। दो मैं तो करूँगी क्योंकि मुझे तो करना है, बट स्टिल अगर आपको ये किसी भी तरह से हेल्प करता है, आपकी फैमिली में किसी को भी हेल्प करता है, इट इज़ नॉट एट ऑल एज रिस्ट्रिक्टेड। एनी वन इन देयर 20s 30s 40s 50s 60s 80s 90s कैन फॉलो दिस, बिकॉज हम सब यहाँ पे एक साथ हैं, हम सब एक साथ ये चीज़ें फील कर रहे हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो एक दूसरे को हेल्प कर सकती है एज ह्यूमंस, हमें वो करना चाहिए। दैट इज़ वॉट इज़ एक्चुअली कॉल्ड being a human or a human being, which we are actually forgetting day by day। क्योंकि at the end यार, खुद को अपने आप के बारे में अच्छा लगना चाहिए। 10 लोग कुछ भी बोले, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को कुछ नहीं समझ रहे हो, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको एट द एंड रिग्रेट्स ही रहने वाले हैं। और कोई बुराई नहीं है रिग्रेट्स के साथ रहना, पर वो लोग जिनको नहीं चाहिए रिग्रेट्स, उनको मुझे लगता है अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए। जब भी उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ जो भी हम चाहते हैं उस तरीके से नहीं हम कर पा रहे। मैं बहुत ही रूकी हूँ इस चीज़ में, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं ये सिर्फ़ और सिर्फ हेल्प करने के लिए लोगों के लिए कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरा स्टाइल या मेरी बातें या मेरा तरीका बिल्कुल भी नेगेटिव लगता है, या कुछ भी ऐसा लगता है जो आपको ठेस पहुंचा रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। मैं ओपन हूँ सीखने के लिए, और इसको एक मूवमेंट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। हमारे कल्चर को, हमारी लर्निंग्स को, हमारे स्क्रिप्चर्स को दूर दूर तक लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, और हरे कृष्णा।